in bracket square connected to a gusset plate to carry a factored load of 150 kilonewton. The angles are connected back to back with long edge connected to opposite side of a 14 mm thick gusset plate. The length of the strut is 3 meter. Use E300 in bracket Fe450 440 grade of steel. So friends, in the previous lecture we have discussed analysis of double angle section. We have discussed how to analyze a double angle section. This is a similar question, but this is a design question. In this question we will see how to design a double angle section, a back to back double angle section. So please note down the question first, then we'll go for the solution. I hope you all have written them. Now see, in question they have asked design a double angle compression member. क्वेश्चन में पहले से ही डबल एंगल स्पेसिफाई किया गया है. सो यू नीड टू टेक अ डबल एंगल सेक्शन कनेक्टेड टू अ गसेट प्लेट टू कैरी अ फैक्टर्ड लोड. क्वेश्चन पे लोड गिवन है 150 किलोमीटर. डबल एंगल सेक्शन विथ अ लोड ऑफ 150 किलोमीटर. द एंगल्स आर प्लेस्ड बैक टू बैक विथ लॉन्ग एज कनेक्टेड टू अपोजिट साइड ऑफ गसेट प्लेट. गसेट प्लेट कितने का दिया गया है? 14 mm thick. The length of the strut is 3 meter. And they have asked us to use grade of steel Fe440. Now let us see. अब देखो, let's go to the solution. Look, the first thing we need to note, E equal to 300. In question they have given E300 in bracket Fe440 grade of steel. I have told you in previous lecture, if nothing is given about the grade of steel, you just assume Fy equal to 250 Newton per mm square and Fu, which is in fact not needed in compression member. But if Fy is 250 Newton per mm square, then you can get Fu equal to 410 Newton per mm square. These all are valid if it is E250 in bracket Fe410. ये भी मैंने बताया था कि कौन सा टेबल में आपको मिलेगा. इफ यू रेफर टेबल 1 of IS 800 2007, you can find the different value of ultimate strength for different value of yield strength. मैंने ये बोला था पहले कि अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया, then you should take Fe Fy equal to 250 and design. But in this question they have already specified the grade of steel is Fe440 and the yield strength is E300. This means we cannot take 250 here. इसका मतलब ये है कि हमें लेना पड़ेगा Fy equal to 300. That means in this case, as per table 1, we need to take Fy equal to 300 and Fu equal to 440. ये Fu आपका जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में यूज नहीं होगा. So you can write this or cannot write this, but this one is important. You need to consider the yield strength as 300 Newton per mm square. The second thing, in question they have given the load equal to 150 kilonewton. यहाँ तक हमें given है. अब देखो डिजाइन शुरू करेंगे. अब पहले के पहले वाले लेक्चर देखना जहां पे मैंने डिजाइन का क्लास किया है, और उसमें मैंने कुछ स्टेप्स लिखवाए थे, 7-8 स्टेप. अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करो तो फर्स्ट थिंग वाज टू एज्यूम द स्लेंडरनेस रेशियो एंड बकलिंग क्लास. क्योंकि यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ जो है गिवन है, सो वी नीड टू एज्यूम द स्लेंडरनेस रेशियो एंड द बकलिंग क्लास. अब देखो स्लेंडरनेस रेशियो मैंने बोला था थंब रूल है. अगर आपका आई सेक्शन डिजाइन करना है, देन इट इज प्रिफरेबल टू टेक स्लेंडरनेस रेशियो अराउंड 70 to 90, and if there is an angle section, then it is preferable to take slenderness ratio around 110 to 130. यहाँ पे एंगल सेक्शन है, so you can assume a slenderness ratio around 110. ऐसे भी कुछ नहीं है कि आपको assume 110 ही करना है.
आप 100, 120, 130, 140 भी कर सकते हो, या आप अगर आप चाहो तो 150, 200, 300, 500, 1000 भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस रेंज में एज्यूम कर रहे हो तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए और इजीली सेफ निकल जाए। तो अगर आप कुछ ज्यादा ले रहे हो या ज्यादा कुछ कम ले रहे हो तो आपको एंगल सेक्शन ढूंढने में एक तो दिक्कत आएगी स्टील टेबल में, तो आपको एप्रोप्रिएट उस एरिया का एंगल सेक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप बहुत ही ज्यादा लेकर डिजाइन कर रहे हो देन एंगल सेक्शन आपका फेल भी हो सकता है। तो आपका सेफ लिमिट है वही 90, 100, 110, 120, 130, या आप 110 में से 130 के बीच लेके करो, मैक्सिमम प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया स्लेंडरनेस रेशियो इक्वल टू 110। बकलिंग क्लास देखो, अगर हम टेबल 10 देखें, इफ यू रेफर टेबल 10 ऑफ IS 800 2007, वहां पे आपको एक रो मिलेगा। पहला रो है आपका आई सेक्शन के लिए, उस हिसाब से आप देखना कि आपका एंगल और डबल एंगल के लिए कौन सा रो है। उस रो में अगर आप देखोगे फॉर एनी एंगल सेक्शन, एंगल, चैनल और डबल एंगल सेक्शन, यू कैन गेट ए बकलिंग क्लास इक्वल टू C। तो कोई भी एंगल सेक्शन हो, कोई भी डायमेंशन हो, आपका बकलिंग क्लास आएगा C। अब देखो नेक्स्ट चीज देखेंगे, एक बार आपका स्लेंडरनेस रेशियो एज्यूम हो गया 110 एंड बकलिंग क्लास आ गया C, उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा FCD। दिस FCD इज द एज्यूम्ड FCD। ये देखो ना ये स्लेंडरनेस रेशियो ओरिजिनल है ना ये बकलिंग क्लास ओरिजिनल है, आप इन दोनों का एज्यूम किया तो इससे भी बकलिंग क्लास ओरिजिनल निकलेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी सेक्शन आप लोग लो बकलिंग क्लास C ही निकलेगा, जो कि हमें टेबल 10 में पता लग रहा है कि एज पर टेबल 10 लेट दैट बी एनी ऑफ द एंगल सेक्शन बट द बकलिंग क्लास विल बी इक्वल टू C। तो हमें ये क्लियर है कि बकलिंग क्लास हर टाइम में C आएगा, लेकिन स्लेंडरनेस रेशियो 110 हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, तो ये अगर बाद में चेंज हुआ तो भी हो सकता है। अब देखो बकलिंग क्लास C और स्लेंडरनेस रेशियो 110। अब आपको फॉलो करना पड़ेगा टेबल 9C। सो इफ यू सी इन टेबल 9C टू फाइंड द FCD फाइंड करने के लिए यू नीड टू रेफर टेबल 9C। अब 9C क्यों रेफर कर रहा हूं? क्योंकि माई बकलिंग क्लास इज C, so I need to refer टेबल 9C। अब देखो टेबल 9C में फर्स्ट कॉलम आपको मिलेगा KL/R। यहाँ पे मेरा KL/R कितना निकला? KL/R इज इक्वल टू 110। तो स्लेंडरनेस रेशियो 110, आई कैन टेक 110। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू ऑफ यील्ड स्ट्रेस के लिए डिफरेंट वैल्यू ऑफ FCD दिया गया है। गलती मत करना कि FY 250 लेके बना देना, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि FY इज नॉट 250, FY इज 300। सो फॉर FY इक्वल टू 300, तो FY इक्वल टू 300 जो कॉलम है वही देखना। FY 300 के लिए आपका FCD कितना निकलेगा अगर आप देखोगे तो दैट इज अराउंड 100 न्यूटन पर mm²। तो ये है आपका FCD जो कि आप लोगों ने एज्यूम किया विद रिस्पेक्ट टू स्लेंडरनेस रेशियो 110। स्लेंडरनेस रेशियो को 110 एज्यूम करके आप लोगों ने एज्यूम्ड FCD निकाला, दैट FCD इज 100 न्यूटन पर mm²। अभी नेक्स्ट स्टेप अगर आप स्टेप वाइज देखो तो नेक्स्ट स्टेप हमारा था कि वी शुड कंसीडर P द सेफ लोड ऑन ए स्ट्रक्चर इज नथिंग बट इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, व्हिच इज इक्वल टू A into FCD। ये मैंने पहले ही बताया है। अब देखो फ्रॉम दिस लाइन यू कैन से A is nothing but equal to P upon FCD। If A equal to P upon FCD, P हमारा क्वेश्चन में गिवन है 150 किलो न्यूटन, we can convert that into Newton। So 150 into 1000 Newton upon FCD is 100 न्यूटन पर mm²। ये हम लोग ने यहाँ से देखा टेबल 9C से। So 150 into 1000 न्यूटन डिवाइडेड बाय 100 न्यूटन पर mm², ये हमारा एरिया निकल गया 1500 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हमारा काम क्या है कि हम इस एरिया को लेके हमें नेक्स्ट डिजाइन करना पड़ेगा। स्टील टेबल में एक एप्रोप्रिएट सेक्शन निकालना पड़ेगा। उस सेक्शन को लेकर हम लोग फिर से चेक करेंगे
कि उसका स्लेंडरनेस रेशियो कितना है, बकलिंग क्लास कितना है, एफसीडी कितना है, वो लोड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। तो देखो पहले तो सवाल आप लोगों ने किया था डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर में आई सेक्शन का, तो उस सवाल को इस सवाल को कंपेयर करो तो लगभग सेम है। बाकी डिफरेंस क्या है कि वहां पे आपको आई सेक्शन अचीव कर रहे थे या आई सेक्शन लेके डिजाइन कर रहे थे, यहाँ पे यू आर टेकिंग अ डबल एंगल सेक्शन। बस उतना ही डिफरेंस है, बाकी आपका सारे स्टेप सही रहेंगे, सेम ही रहेंगे। अब देखो एक बार आपका एरिया निकल गया, so after finding the area which is equal to AE 1500 न्यूटन पर 1500 मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखो आपको इस एरिया के आसपास लेके एक एरिया डिजाइन करना पड़ेगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, देखो अगर आप स्टील टेबल पर नोट करोगे, स्टील टेबल को अच्छे से देखोगे, देन यू कैन फाइंड बैक टू बैक इक्वल एंगल एंड बैक टू बैक अनइक्वल एंगल्स। देखो आपको ये दोनों मिल जाएंगे, एक तो है आपको इक्वल एंगल मिलेंगे बैक टू बैक जिसका दोनों लेग इक्वल होगा, या आपको मिलेगा बैक टू बैक अनइक्वल एंगल। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लॉन्ग एज कनेक्टेड बैक टू बैक देख रहा हूं, शॉर्ट एज नहीं। तो ये ज्यादातर कंसीडर किया जाता है। अब देखो आप ये ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, यहां पे लॉन्ग एज कनेक्टेड सॉरी इक्वल एंगल कनेक्टेड बैक टू बैक, यहां पे अनइक्वल एंगल कनेक्टेड बैक टू बैक। अब देखो दोनों में से आपको कौन सा लेना है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखना, आपके डिप्लोमा के सिलेबस के हिसाब से और डिप्लोमा क्वेश्चन के हिसाब से, अगर ये भी ले रहे हो तो भी आपका आंसर सेफ निकलेगा, अगर ये भी ले रहे हो तो भी आपका आंसर सेफ निकलेगा। आप दोनों में से किसी को लेके भी एग्जाम में डिजाइन कर सकते हो और आपको मार्क्स भी पूरे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हो, अगर आप ओरिजिनली कोई बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हो या कोई कंप्रेशन मेंबर डिजाइन कर रहे हो, इसको प्रीफर नहीं करना है। यू शुड ऑलवेज प्रीफर अ डबल एंगल बैक टू बैक और डबल एंगल अनइक्वल डबल एंगल बैक टू बैक जिसका दोनों लेग अनइक्वल होगा और आपको लॉन्ग एज को कनेक्ट करना है, शॉर्ट एज को नहीं। ये क्यों करना है ये मैं बता रहा हूं। देखो कुछ रीजन है इसके। देखो ध्यान से सुनना, ये आपको एग्जाम वगैरह में नहीं पूछेंगे, लेकिन जानने की चीजें इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो दो एंगल है मेरे पास, वन इज एन इक्वल एंगल एंड अनदर इज एन अनइक्वल एंगल। देखो मेरे पास दो एंगल है, एक तो ये इक्वल एंगल है जिसका दोनों साइड इक्वल है और दूसरा है अनइक्वल एंगल। और मान लो दोनों का एरिया सेम है, द एई इज सेम, एई इज सेम, दैट मीन्स दोनों का सेक्शनल एरिया सेम है। अगर दोनों का एरिया सेम है तो मान लो अगर ये एक मेंबर है ये मेंबर है, दोनों का वेट सेम है, और आप बोल सकते हो कि अगर मार्केट में जाओ तो इसकी कॉस्ट और इसकी कॉस्ट दोनों की कॉस्ट सेम है। अगर दोनों की कॉस्ट सेम है तो एक चीज ध्यान में रखना कि किसको आपको लेना है। अब देखो ये मैं सिंगल एंगल के लिए बता रहा हूं, उसके बाद मैं डबल एंगल बताऊंगा। अब देखो यहां पे अगर आप देखो इसका जेड एक्सिस यहां रहेगा,
यहाँ कहीं है। अगर आप चेक करो दोनों में से तो इसका आर जेड जेड देखना इसका आर जेड जेड आपका कम निकलेगा। अगर आप स्टील टेबल में कोई भी सेक्शन इक्वल एंगल और अनइक्वल एंगल का कंपेयर करना, आप सेम एरिया, बार बार बता रहा हूं, इन दोनों का अगर एरिया सेम है तो कंपेयर करना, अगर एरिया डिफरेंट है तो आपको सेम डिफरेंट वैल्यू भी मिल सकते हैं। अब देखो दोनों का अगर एरिया सेम है, आप रेडियस ऑफ डायलेशन कंपेयर करो तो इसका आर जेड जेड कम निकलेगा, इसका आर जेड जेड इज मोर। तो दोनों को कंपेयर करो तो इससे इसका आर जेड जेड ज्यादा है और इसका आर जेड जेड अनइक्वल से कम है, मतलब इक्वल का आर जेड जेड कम निकलेगा और रेडियस ऑफ डायलेशन इन जेड एक्सिस कम निकलेगा और अनइक्वल का रेडियस ऑफ डायलेशन इन जेड एक्सिस ज्यादा निकलेगा। अब देखो लेकिन अगर हम आर वाई वाई देखें देन इसका आर वाई वाई इज मोर, इसका आर वाई वाई ज्यादा निकलेगा और इसका आर वाई वाई इज लेस। अगर मैं एक इक्वल एंगल और एक अनइक्वल एंगल को कंपेयर करूं, ध्यान से सुनना, अगर इक्वल एंगल और अनइक्वल एंगल इफ बोथ आर हैविंग अ सेम एरिया, मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, देन इसका जेड एक्सिस में रेडियस ऑफ डायलेशन इक्वल एंगल का कम है इन कंपैरिजन टू द अनइक्वल एंगल, बट द इक्वल एंगल इज हैविंग मोर रेडियस ऑफ डायलेशन इन वाई एक्सिस देन अनइक्वल एंगल। इसका रेडियस ऑफ डायलेशन वाई एक्सिस में ज्यादा निकलेगा देन दिस और जेड एक्सिस में कम निकलेगा देन दिस। ये क्लियर हो गया हमारा। तो मान लो तब देखो अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो जेड एक्सिस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है। अगर कोई आपको पूछे कि जेड एक्सिस में ये स्ट्रॉन्ग है या फिर अनइक्वल स्ट्रॉन्ग है, तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि इफ आर जेड जेड इज मोर इन अनइक्वल एंगल देन इट इज मोर स्ट्रॉन्गर इन जेड एक्सिस। सो आई कैन से अनइक्वल एंगल इज मोर स्ट्रॉन्गर इन जेड एक्सिस एंड इक्वल एंगल इज लेस स्ट्रॉन्ग इन जेड एक्सिस इन कंपैरिजन टू द अनइक्वल एंगल। अगर आपको कोई अब ये पूछे कि अगर वाई वाई सेक्शन में देखें तो which one is stronger in YY axis, अगर आपको YY axis में पूछा गया then an equal angle is more stronger in YY axis than the unequal angle। इसका मतलब है Y में ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन Z में वीक है इन कंपैरिजन टू अनइक्वल एंगल। अगर खुद का देखो, अगर आप इक्वल एंगल को अपने आप में कंपेयर करो तो इसका Y वीक है Z स्ट्रॉन्ग है। सॉरी, इसका तो दोनों ही सेम निकलेगा, सॉरी इसका दोनों सेम निकलेगा, मतलब आर वाई वाई और आर जेड जेड सेम होगा। अगर दोनों एक्सिस सेम है तो इसका अपना स्ट्रेंथ जो है वो दोनों ही एक्सिस में सेम रहेगा, लेकिन अगर इसको कंपेयर करो अनइक्वल एंगल के साथ तो इसका आर वाई वाई अनइक्वल से ज्यादा आएगा और आर जेड जेड अनइक्वल से कम आएगा। तो ये वाई एक्सिस में इन कंपैरिजन टू अनइक्वल एंगल स्ट्रॉन्गर रहेगा और जेड एक्सिस में इन कंपैरिजन टू अनइक्वल एंगल ये वीक रहेगा। देखो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जेड और वाई में इसमें हो क्या रहा है। अब देखो अगर मेरे को कोई सेक्शन डबल एंगल बनाना है और इसको मैं डबल एंगल में कन्वर्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, if I am converting this into a double angle, तो इसका जेड एक्सिस वही रहेगा लेकिन इसका वाई एक्सिस शिफ्ट हो जाएगा। तो जो वाई था वहां पे अब ये वाई एक्सिस आ गया बीच में, तो जो वाई एक्सिस इज शिफ्टेड, अगर इसका वाई एक्सिस शिफ्ट हो गया तो अब देखो इसका जेड एक्सिस वीक हो गया और जो जेड जेड था आर जेड जेड उतना ही रह गया लेकिन आर वाई वाई इज मोर। अब इसका आर वाई वाई बढ़ गया इन कंपैरिजन टू आर जेड जेड, लेकिन अब इसका आर वाई वाई, हाँ इसका आर वाई वाई इन कंपैरिजन टू आर जेड जेड बढ़ गया, लेकिन अगर आप कंपेयर करो तो ये एंगल दोनों एक्सिस में सेम स्ट्रेंथ था इसका, लेकिन अभी आपको वाई एक्सिस में इसका स्ट्रेंथ बढ़ गया लेकिन जेड एक्सिस में जितना था उतना ही रह गया। अब देखो ये सेक्शन तो आपका वाई में ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्यों? क्योंकि वाई में और एक एंगल कनेक्टेड हो गया, तो दिस सेक्शन विल बी मोर स्ट्रॉन्गर इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन जेड एक्सिस में ये जितना स्ट्रॉन्ग था अभी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग रहा। जेड एक्सिस में इसका स्ट्रेंथ अभी बढ़ा नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लोग जेड एक्सिस हमारा चेंज नहीं हुआ, जहां पे था वहीं पे ही
रह गया। तो जेड एक्सिस इज एज इट इज बट वाई एक्सिस इज शिफ्टेड। तो जेड पे जितना स्ट्रेंथ था उतना ही रहा, लेकिन वाई पे मेरा स्ट्रेंथ बढ़ गया। अगर आप देखो इस वाले केस पे, इफ आई एम कन्वर्टिंग दिस इनटू अ डबल एंगल, अब देखो इसका पहले कौन सा वीक था, इसका जेड वाले में पहले से ही ये उससे स्ट्रॉन्ग था, इसका जेड पहले से उससे स्ट्रॉन्ग था। अभी जेड एक्सिस शिफ्ट नहीं होगा तो ये जेड में ही जेड में उससे स्ट्रॉन्गर है, लेकिन ये किसमें वीक था, ये वाई में वीक था। तो इसका वाई नॉर्मली स्ट्रॉन्ग था लेकिन इसका वाई वीक था। तो अब देखो इसका वाई एक्सिस कहां शिफ्ट हो गया, तो ये जेड में स्ट्रॉन्ग जैसे था पहले से ही अभी भी स्ट्रॉन्ग है, और वाई में इसका वाई एक्सिस शिफ्ट हो गया। सो इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्गर इन वाई एक्सिस। अब देखो मैं फिर से बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान में रखना कि इसका दोनों एक्सिस में पहले स्ट्रेंथ सेम था। अगर मैं इसको डबल एंगल बना रहा हूं तो इसका वाई एक्सिस में स्ट्रेंथ बढ़ गया, लेकिन जेड एक्सिस में एज इट इज स्ट्रेंथ रह गया। तो मेरे को कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो वाई एक्सिस में पहले से ही स्ट्रेंथ ज्यादा था और ज्यादा बढ़ गया, और जेड एक्सिस में पहले से जितना स्ट्रेंथ था उतना ही रह गया। अब देखो ये वाले सेक्शन पे क्या था, जेड एक्सिस में स्ट्रेंथ इससे ज्यादा था, इससे इसका जेड एक्सिस में स्ट्रेंथ ज्यादा था, लेकिन ये वाई एक्सिस में बहुत ही ज्यादा वीक था। अब देखो मैं जब डबल एंगल कर रहा हूं तो ये जेड एक्सिस में जितना स्ट्रॉन्ग था उतना ही रह गया, लेकिन वाई एक्सिस में इसका स्ट्रेंथ बढ़ गया पहले से। सो नाउ आई कैन से दिस वन इज स्ट्रॉन्गर इन बोथ जेड एंड वाई एक्सिस। तो इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज नाउ स्ट्रॉन्गर इन बोथ जेड एंड वाई एक्सिस, बट दिस वन इज स्ट्रॉन्गर इन वाई एक्सिस, बट इसका जेड एक्सिस में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा। तो देखो अगर आपके पास आप एक बिल्डिंग बना रहे हो और कंप्रेशन मेंबर के तौर पर इन दोनों का यूज कर रहे हो, तो मैं अगर इसको यूज करूं और इसको यूज करूं मेरे खर्चे सेम होंगे। क्यों? क्योंकि इसका एरिया जितना है इसका एरिया भी उतना है, दोनों में मेरे को खर्चे सेम आएंगे। खर्चे अगर सेम आए तो मेरे को देखना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है। अब देखो ये वाई पे ज्यादा स्ट्रेंथ देगा, लेकिन जेड पे इजीली फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जेड पहले से ही इससे कम था, अभी भी उतना ही रहा। लेकिन देखो इसका जेड पहले से ही इससे ज्यादा था, तो ये जेड एक्सिस में एज इट इज पहले से ही स्ट्रॉन्ग था, और जो एक्सिस इसका वीक था वाई एक्सिस, तो मैंने उसको बढ़ा दिया है ऑलरेडी। तो मेरा देखो ये जेड और वाई में दोनों में से दोनों ही एक्सिस में ज्यादा स्ट्रेंथ लेगा देन दिस मेंबर। तो उसका वीक भी स्ट्रॉन्ग हो गया, और स्ट्रॉन्गर जो था पहले से ही स्ट्रॉन्ग है। तो इसका वीक जो था वो स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन पहले से ही जो एक्सिस दूसरा एक्सिस जो पहले से वीक था वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया। सो इफ I am spending the same money on both of them, then I can get more result in double angle back to back, which is more stronger in z axis and equally stronger in y axis as single angle back to back. तो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मेरे को डबल एंगल बैक टू बैक ही कंसीडर करना पड़ेगा। ये अगर कंसीडर करें तो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर आप एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो देन यू कैन कंसीडर बोथ ऑफ देम। इससे भी आंसर निकलेगा, उससे भी आंसर निकलेगा। तो आप ये बोलोगे सर एग्जाम पेन और पेपर में तो खर्चा नहीं है, सच में भी खर्चा नहीं है। तो मार्केट में जितना भी प्राइस आ गया आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका क्वेश्चन ठीक आएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। लेकिन इफ यू आर सिटिंग इन एन इंटरव्यू एंड सेइंग माय फेवरेट सब्जेक्ट इज स्किल डिजाइन, देन दे मे आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि अगर आई एम हैविंग द ऑप्शन ऑफ double angle back to back of equal angle and unequal angle, which one to prefer, then you can say this region and you can crack the interview. तो ये चीजें ध्यान में रखना। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं क्या हो सकता है, अगर देखो डबल एंगल सेक्शन किस केस में यूज होता है ज्यादातर, इन केस ऑफ ट्रस। अगर मैं ट्रस मेंबर डिजाइन कर रहा हूं तो
तो मान लो एक ट्रस का स्ट्रट डिजाइन कर रहा हूं, देखो इस ट्रस में ये सिंपल 3 पोस्ट ट्रस है। इस ट्रस में अगर मैं देखूं तो ये दोनों आएंगे मेरे कंप्रेशन मेंबर और स्ट्रट, ये आएगा टायर। अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं तो एक ट्रस में सारे मेंबर मेरे अलग अलग लोड के आएंगे, तो ये स्ट्रट आ जाएगा, ये टायर आ जाएगा, दिस इज अ टेंशन मेंबर, दिस इज अ कंप्रेशन मेंबर। अब देखो आप जो भी सेक्शन यूज कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग ए डबल एंगल सेक्शन फॉर दिस, यू शुड आल्सो यूज फॉर दिस। क्यों? अगर सारा कनेक्शन आपका सारा स्ट्रक्चर एक ही सेक्शन का रहेगा, आपको एक तो इकोनॉमिकल आएगा, दूसरा आपको कनेक्शन में दिक्कत नहीं होगी, मतलब कनेक्शन का प्रॉब्लम नहीं होगा। चीज जो है आपको सिमेट्री दिखेगी कि होल सेक्शन सिंगल सेक्शन इज यूज्ड इन होल ऑफ द स्ट्रक्चर। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे आप लोग इक्वल एंगल लगा दिए, यहाँ पे डबल एंगल लगा दिए, यहाँ पे चैनल लगा दिया, वहां पे आई लगा दिए, ऐसे नहीं होता है। अगर प्रैक्टिकली देखो तो यू शुड यूज अ यूनिफॉर्म सेक्शन थ्रू आउट द स्ट्रक्चर फॉर सिमेट्री। अब देखो अगर हम टेंशन नंबर की बात करें, हम लोग टेंशन नंबर में पढ़े थे, एक फैक्टर पढ़े थे शियर लैग फैक्टर। तो शियर लैग फैक्टर में हम लोग पढ़े थे कि अगर एक कनेक्टेड लेग है और एक अनकनेक्टेड लेग है और आउटस्टैंडिंग लेग है, इफ अ लेग इज कनेक्टेड टू अ गसेट प्लेट एंड अनदर लेग इज अ आउटस्टैंडिंग लेग, कनेक्टेड लेग एंड आउटस्टैंडिंग लेग, तो मेरा जो आउटस्टैंडिंग लेग है वो लोड कम लेगा और कनेक्टेड लेग मेरा लोड ज्यादा लेगा। मतलब जो लेग मेरा गसेट प्लेट के साथ कनेक्टेड है दैट विल टेक मोर लोड, एंड जो लेग मेरा कनेक्टेड नहीं है गसेट प्लेट के साथ दैट विल टेक लेस लोड। अब देखो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, हमें अनइक्वल एंगल ही यूज करना है फॉर टेंशन मेंबर। क्यों? क्योंकि मेरा लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरा कनेक्टेड लेग ज्यादा आएगा, अनकनेक्टेड लेग कम आएगा और आउटस्टैंडिंग लेग कम आएगा। तो टेंशन मेंबर में ज्यादातर शियर लैग फैक्टर के लिए वी यूज टू प्रीफर अनइक्वल एंगल। तो अगर आप एक स्ट्रक्चर पे एक टेंशन मेंबर को अनइक्वल एंगल लेके डिजाइन कर रहे हो, तो फॉर सिमेट्री यू शुड आल्सो सी फॉर एन अनइक्वल एंगल बैक टू बैक फॉर ए स्ट्रट मेंबर। तो टेक्निकली, इकोनॉमिकली, रेडियस ऑफ डायरेक्शन के हिसाब से हर तरीके से हम लोग देखें कि व्हाई टू प्रीफर अ अनइक्वल एंगल देन अ इक्वल एंगल बैक टू बैक। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में आप लोग देखो तो ऑलरेडी इन क्वेश्चन दे हैव स्पेसिफाइड कि आपको लेना पड़ेगा अ बैक टू बैक डबल एंगल विथ लॉन्ग एज कनेक्टेड टू बोथ द साइड ऑफ द गसेट प्लेट। तो यहाँ पे स्पेसिफाई पहले से किया गया है कि लॉन्ग एज कनेक्टेड है, दैट मींस इसका मतलब क्या है कि जो आपका सेक्शन है वो अनइक्वल एंगल है, क्योंकि लॉन्ग एज कनेक्टेड है, शॉर्ट एज आउटस्टैंडिंग है। तो ये हो गया आपका कंप्रेशन मेंबर, स्ट्रट मेंबर 3 मीटर का मेंबर है विथ लॉन्ग एज कनेक्टेड बैक टू बैक। अगर मैं सेक्शन इसका देखूं, अब देखो 2 सेक्शन कर रहा हूं। फर्स्ट वन इज सेक्शन ए, इफ आई सी सेक्शन ए, तो यहां पे मेरे को गसेट प्लेट दिखेगा, there is a gusset plate in between of thickness 40 mm। तो 40 mm थिक मेरे को गसेट प्लेट दिखेगा यहाँ पे, और दोनों साइड में 2 अनइक्वल एंगल। अगर मैं यहां से एक सेक्शन देखूं, सेक्शन बीबी, देन आई कैन सी देयर आर 2 अनइक्वल एंगल्स। अब गसेट प्लेट खाली एंड पे कनेक्टेड है, सो यू कैन नॉट सी अ गसेट प्लेट इन सेक्शन बीबी। तो ये आपका आ गया एलिवेशन। ये आ गया सेक्शन ए, ये आ गया सेक्शन बी। इतना क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इसका प्लान बनाऊं
आई कैन सी यहां पे गसेट प्लेट, यहां पे गसेट प्लेट, सॉरी वहां पे गसेट प्लेट, यहां पे गसेट प्लेट और ये दो एंगल, ये है इसका कनेक्टेड फ्लेम जो डॉटेड लाइन में दिखा रहा हूं, ये हम ऊपर से देख रहे हैं। सो दिस इज द प्लान, दिस इज द एलिवेशन, दीज आर टू सेक्शंस। सो ये सारा नोट कर लो। So friends, after getting the area, effective area equal to 1500 millimeter square, we need to choose an angle, a double angle section, a back to back double angle section from the steel table. So I have choose the double angle section from the steel table. अब जब आप steel table से choose कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि when area is equal to 1500 mm square, you need to choose the area which is nearly equal to 1500 mm square. So nearly equal to मतलब क्या है कि देखो हम लोग ज्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत कम नहीं लेना है। अगर बहुत कम ले जाएंगे, जैसे 1500 मिलीमीटर स्क्वायर का एरिया है, and if I am assuming a section having area of 1300 or 1200, then that may fail. That may fail, ऐसा नहीं कि फेल ही होगा। तो हम सेफर साइड में रहेंगे अगर हम इसके आसपास वाले एरिया देखेंगे, थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम हो तो भी चलेगा। सो फ्रॉम स्टील टेबल आप डबल एंगल वाला सेक्शन देखोगे, कंटेंट में जाके व्हेन बैक टू बैक डबल एंगल देखोगे, देन यू कैन फाइंड ISA 8056 हैज अ सेक्शनल एरिया 1492 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने पूरी टेबल ड्रॉ की हुई है। तो अगर आप टेबल देखोगे, the top left corner you can find a double angle section, unequal double angle section। अब देखो हमारे पास सेक्शन ये है unequal double angle section, गैप कितना है दोनों के बीच 14 mm। 14 mm क्यों होगा? क्योंकि हमारा गसेट प्लेट दिया गया है 14 mm। सो the gap between the double angle section we can consider it as 40 mm। अब देखो जब आप स्टील टेबल देखोगे, पहला कॉलम का डेजिग्नेशन, देन थिकनेस, देन सेक्शनल एरिया, और उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 3-4 होंगे। उसके बाद आपको मिल जाएगा RZZ। अब देखो RYY के लिए आपको दूसरा वाला पेज रेफर करना पड़ेगा, मतलब लेफ्ट साइड वाले पेज पे आपको यहां तक मिल जाएगा RZZ, लेकिन RYY के लिए यू नीड टू कंसीडर द नेक्स्ट पेज और द पेज ऑन द राइट हैंड साइड। अब देखो मैंने 1500 के आसपास एक एरिया चूज किया, दैट एरिया इज 14.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हिच आई कैन कन्वर्ट दैट इनटू मिलीमीटर स्क्वायर, 1492 मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखो 1492 मिलीमीटर स्क्वायर मैंने लिया, चूज किया, एंड दिस इज एन एजम्पशन। अब इसको लेके हमें देखना पड़ेगा इज इट सेफ इन ऑल द पैरामीटर्स और नॉट। अगर ये सेफ निकल गया, आपका एफसीडी जितना निकला, इस हिसाब से हम लोग बकलिंग क्लास निकालेंगे, स्लेंडरनेस रेशियो निकालेंगे और एफसीडी निकालेंगे, एंड दैट एफसीडी मल्टीप्लाइड बाय दिस सेक्शनल एरिया विल गिव अस द पीटी और सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है आपका लोड ऑन द स्ट्रक्चर इज 150 किलोन्यूटन। अगर इसका स्ट्रेंथ 150 किलोन्यूटन से ज्यादा निकल रहा है, देन इट इज सेफ, और एल्स यू नीड टू गो फॉर रीडिजाइन। अब देखो मैं सेक्शन ले रहा हूं 8056। हाँ, आपका ध्यान में यह आ सकता है कि अगर मेरा 1500 mm स्क्वायर आ रहा है और आई एम टेकिंग अ सेक्शन मोर देन द एरिया, जैसे 1600, 1700, 1800 कुछ ऐसे का सेक्शन ले रहा हूं, देन इट कैन पास इजीली। तो आप सही सोच रहे हो, अगर हम इससे ज्यादा वाला सेक्शन लेंगे तो बाय डिफॉल्ट पास होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन मैंने यहाँ पे एरिया कम लिया है। क्यों? जब आप प्रैक्टिकली कोई चीज डिजाइन कर रहे हो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचना, अगर प्रैक्टिकली कोई चीज डिजाइन कर रहे हो तो मेन फैक्टर आपका आएगा इकोनॉमी। तो आप देखोगे कि आपका कॉस्ट किस चीज में कम हो रहा है। तो अगर हम कम वाले सेक्शन लेके डिजाइन करेंगे और बाई चांस ये सेफ निकल गया, देन माय कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन विल बी लेस इन कंपैरिजन टू द सेक्शन व्हिच इज हैविंग अ मोर एरिया।
क्योंकि देखो एरिया के ऊपर तो मेरा सेल्फ लोड डिपेंड करेगा या स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा, लेकिन एरिया के ऊपर भी डिपेंड करेगा और रेडियस ऑफ डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे एरिया थोड़ा ज्यादा हो या कम हो, लेकिन रेडियस ऑफ डायरेक्शन देखोगे हर सेक्शन के लिए अलग अलग है। तो मेरा रेडियस ऑफ डायरेक्शन मेन फैक्टर है, क्योंकि उससे मेरा स्लेंडरनेस रेशियो निकलेगा और स्लेंडरनेस रेशियो एक मेजर रोल प्ले करेगा इन फाइंडिंग द एफसीडी। अगर आप टेबल 9 देखो तो मोस्टली लोड आपका डिपेंड करेगा स्लेंडरनेस रेशियो के ऊपर। सो हमारा एरिया उतना एरिया के ऊपर उतनी डिपेंड नहीं करेगी। सो आई कैन टेक ए लेसर एरिया, अगर फेल हुआ देन आई कैन रीडिजाइन इट। अब देखो मैंने सेक्शन चूज किया है 80, 56। अब पहले मैं बता चुका हूं कि डबल एंगल सेक्शन क्यों लेना है। उस हिसाब से हम लोग अगर अच्छे से देखें तो डबल एंगल सेक्शन इज मोर इकोनॉमिकल। अब डबल एंगल सेक्शन में मैंने एक एरिया आसपास वाले एरिया लिया 1500 के आसपास, दैट इज 1492 मिलीमीटर स्क्वायर। अगर आप देखो तो 1492 का डेजिग्नेशन आईएसए 8056, उसका सेक्शनल एरिया यहाँ पर दिया गया है 4.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो दैट इज इक्वल टू 1492 मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखो आर जेड उसी वाले रो पर देखना, आर जेड इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर। अगर आर वाई वाई देखोगे देन आर वाई वाई के अंदर आपको दिया गया होगा डिस्टेंस बिटवीन बैक टू बैक एंगल इन सेंटीमीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है दोनों एंगल के बीच, उसके ऊपर मेनली डिपेंड करेगा आपका आर वाई वाई कितना है। अगर डिस्टेंस 0 है तो अलग ही आर वाई वाई मिलेगा। अगर डिस्टेंस 0.6 सेंटीमीटर है, ये सारे सेंटीमीटर में है, ध्यान में रखना। द डिस्टेंस बिटवीन बैक टू बैक एंगल इन सेंटीमीटर, तो अगर 0.6 सेंटीमीटर है उसका वैल्यू अलग निकलेगा, अगर 1 सेंटीमीटर है तो उसका वैल्यू निकलेगा अलग, अगर 1.4 सेंटीमीटर है तो उसका वैल्यू अलग निकलेगा। अब देखो हमारा डिस्टेंस कितना है 40 मिलीमीटर। तो अगर मैं 40 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं देन दैट विल बी इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। तो देखो 1.4 वाले सेंटीमीटर कॉलम में अगर हम देखें देन माई रेडियस ऑफ डायरेक्शन इज 2.16। अब देखो हमें टेबल मिल गया, हम लोग एक सेक्शन भी चूज कर लिए। नाउ वी नीड टू सी दिस सेक्शन विल बी सेफर इन दैट लोड और नॉट। अब देखो नेक्स्ट थिंग, देखो स्ट्रेंथ निकालने के लिए मेरे को 3 चीज चाहिए। पहला चीज है दैट मींस यू कैन राइट एफसीडी डिपेंड्स ऑन फर्स्ट वन इज स्लेंडरनेस रेशियो, second one is buckling class, third one is yield strength। अब देखो yield strength क्वेश्चन में गिवन है, yield strength is nothing but 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मैंने ये बताया था कि यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से ही स्पेसिफाई है कि मेरा yield strength है 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 250 नहीं लेना है इधर। अब देखो बकलिंग क्लास मैंने ये भी बताया था कि अगर आप टेबल 10 रेफर करो तो टेबल 10 में आपका बकलिंग क्लास कोई भी सेक्शन हो, एंगल सेक्शन हो, किसी भी साइज का एंगल सेक्शन हो, ऑलवेज द बकलिंग क्लास इज सी। एंगल सेक्शन के लिए हर वक्त आपका बकलिंग क्लास सी ही रहेगा, तो ये भी चेंज नहीं होगा, लेकिन चेंज होगा लैम्डा। अब देखो स्लेंडरनेस रेशियो निकालेंगे, सो गिव द हेडिंग स्लेंडरनेस रेशियो। Lambda in order to calculate lambda we know lambda is nothing but KL upon R, और आप लिख सकते हो R मिनिमम। अब देखो lambda इक्वल टू KL upon R मिनिमम, सो lambda किसके ऊपर डिपेंड करेगा, KL के ऊपर और R मिनिमम के ऊपर। यहाँ पे देखो मेरे पास 2 R है, वन इज R ZZ, अनदर वन इज R YY। अब देखो R ZZ और R YY में से मिनिमम जो है हमें उसी को लेके ही डिजाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा उल्टा एक्सिस होगा। अब देखो R Z और R YY में से मिनिमम कौन सा है, सो R YY इज मिनिमम 2.16 सेंटीमीटर। सो आई कंसीडर R मिनिमम इज इक्वल टू R YY व्हिच इज इक्वल टू 2.16 सेंटीमीटर, और आई कैन राइट 21.6 मिलीमीटर। अभी हमें R मिनिमम मिल गया और आई कैन से R YY जो है वो हमारा R मिनिमम है, तो वो हमें मिल गया।
2.16 मिलीमीटर। अब देखो सॉरी 21.6 मिलीमीटर, तो मैं आर मिनिमम इज 21.6 मिलीमीटर। अब केएल देखो, मैंने ये बताया था कि एंगल सेक्शन के लिए आपको अगर केएल निकालना है तो आप टेबल 11 रेफर नहीं कर सकते। टेबल 11 जो है वो केवल कॉलम के लिए है, एंड इन द क्वेश्चन इट इज गिवन है स्ट्रट। सो फॉर अ स्ट्रट मेंबर यू नीड टू सी द एंड कनेक्शन, कि एंड पे आपका कितना बोल्ट कनेक्टेड है, उस हिसाब से आप निकाल सकते हो आर सॉरी के एल। अब देखो मैंने ये बोला था अगर एंगल सेक्शन है and there is a gusset plate on both sides, and if it is connected by a single bolt on both sides, अगर यहाँ पे एक बोल्ट है, यहाँ पे एक बोल्ट है, then KL will be equal to 1 into L। तो पहला केस ये देखते हैं, तो मैं एज्यूम करूंगा, एज्यूमिंग अ सिंगल बोल्ट on each gusset plate। अगर गसेट प्लेट में सिंगल बोल्ट लगा हुआ है इधर और इधर, then I can see my KL is nothing but equal to 1 into L। तो KL कितना होगा 1 into L। अब देखो KL मैंने निकल गया 1 into L। अब देखो क्वेश्चन में L कितना दिया गया है, लेंथ ऑफ द मेंबर। द लेंथ ऑफ द मेंबर इज गिवन 3000 mm और 3 मीटर और 3000 mm। सो आई कैन राइट हियर 1 into 3000 mm। अब इसको निकाल दो, KL अपॉन R मिनिमम आपका कितना निकला 3000 डिवाइडेड बाय 21.6। देखो यहाँ पे छोटा सा करेक्शन कर रहा है, ये मैंने गलती से यहाँ पे 21.6 लिख दिया था 2.16, बट 2.16 इज फॉर 1 mm डिस्टेंस 1.4 mm के लिए। देखो आपको ये सेक्शन मिल जाएगा स्पीड लेवल में पेज 28 और पेज 29 पे। ये वाला कॉलम आपको मिल जाएंगे पेज 28 पे, ये वाले कॉलम मिलेंगे पेज 29 पे। तो अगर आप पेज 29 जाके देखो तो 1.4 डिस्टेंस के लिए आपका रेडिएशन डायरेक्शन है 2.32 सेंटीमीटर। मैंने गलती से 2.16 लिख दिया था, उसको चेंज कर देना कॉपी पे 2.32 सेंटीमीटर। व्हेन आई कन्वर्ट दैट इनटू मिलीमीटर दैट विल बी 23.2 मिलीमीटर। अब देखो तो यहाँ पे आपको 2.16 नहीं लगाना है, 21.6 नहीं लगाना है, 23.2। तो 3000 मिलीमीटर अपॉन 23.2 मिलीमीटर, और बाकी सारा सेम रहेगा। दैट विल बी माय लैम्डा इज इक्वल टू 129.31। तो एक बार हमारा लैम्डा निकल गया। द नेक्स्ट थिंग इज वी नीड टू फाइंड एफसीडी। अब देखो बकलिंग क्लास हमें पता है सी, लैम्डा मिल गया और एफओआई भी मिल गया। एफओआई क्वेश्चन में दिया गया है 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर, लैम्डा हमें मिल गया 129.31, बकलिंग क्लास मिल गया सी। सो यू नीड टू कैलकुलेट एफसीडी। अब देखो एफसीडी इज नथिंग बट FCD will be calculated from table 9C। टेबल 9C क्यों ले रहा हूं, क्योंकि बकलिंग क्लास है C, हर कोई एंगल के लिए बकलिंग क्लास C होगा। सो व्हेन यू सी टेबल 9C, एक कॉलम आपको मिलेगा KL/R और दूसरा FCD फॉर E300 और फॉर FY 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर के लिए आपको एफसीडी कितना उसका एक टेबल मिलेगा, कॉलम मिलेगा। अब देखो अगर आप देखोगे 120 पे अगर KL अपॉन R 120 है, देन FY इज इक्वल टू 87.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इफ KL अपॉन R इज 130, देन FY इज 77.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमें निकालना कितने में होगा, वी नीड टू फाइंड फॉर 129.31। अब देखो 129.31 पे आपका एफसीडी कितना निकलेगा, उसको कैलकुलेट करेंगे, इंटरपोलेशन करेंगे। अब देखो मैं इंटरपोलेशन कर रहा हूं, इंटरपोलेशन
इक्वल टू 129.31 इज इक्वल टू 77.3 माइनस 87.6 डिवाइडेड बाय 130 माइनस 120 होल इंटू 129.31 माइनस 120 प्लस 87.6। तो ये आ जाएगा आपका एचसीडी कैलकुलेट। सो योर एचसीडी विल बी इक्वल टू 78। तो ये आपका आ जाएगा 78। तो आपको एक बार एचसीडी मिल गया, देन यू कैन फाइंड पीबी। पीबी इज नथिंग बट इक्वल टू ए इंटू एचसीडी। यही हो गया आपका 14.1491 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हम पहले से देखते हैं स्पीड टेबल में 14.91 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1491 मिलीमीटर स्क्वायर। एफसीडी इज इक्वल टू 78 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखो अगर मल्टीप्लाई करो दोनों को 1491 इंटू 78 तो ये 1492 है। तो आपका निकल जाएगा 160.376 किलोमीटर। देखो न्यूटन में आएगा, अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो देन इट इज 116.376 किलोमीटर। अब देखो आपका स्ट्रेंथ ऑफ द एंगल सेक्शन निकला 116.376 किलोमीटर। लेकिन आपको क्वेश्चन अगर देखोगे, क्वेश्चन पे लोड गिवन है 150 किलोमीटर। तो आपका लोड जो है आपका स्ट्रेंथ में से स्ट्रेंथ से लोड ज्यादा निकल रहा है। सो दिस मेंबर इज फेल एज इट इज लेस देन 150 किलोमीटर। हेंस सेक्शन फेल। अब देखो ये पास नहीं हुआ क्योंकि इसका लोड 150 किलोमीटर से ज्यादा नहीं निकला। सो इट विल बी ए फेल। तो हमें इसको पास करना है। अब देखेंगे अगर आपका सेक्शन फेल होता है तो आप कैसे पास करोगे। देखो आप लोग लैम्डा लिए थे KL/R। अब एक चीज ध्यान में रखना, इस टेबल पे देखना जैसे जैसे लैम्डा आपका बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका स्ट्रेंथ कम हो रहा है। इफ लैम्डा इज इंक्रीजिंग, देखो 120 लैम्डा पे स्ट्रेंथ था 87.6, 130 लैम्डा पे स्ट्रेंथ हो गया 77.3। तो आप ये देख सकते हो कि जैसे जैसे लैम्डा आपका बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेंथ और द डिजाइन स्ट्रेस इज डिक्रीजिंग। सो इफ लैम्डा इंक्रीजेस देन स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। अब देखो यहाँ पे हम लोग एफओ चेंज नहीं कर सकते क्योंकि एफओ क्वेश्चन में गिवन है। हम लोग बकलिंग क्लास चेंज नहीं कर सकते क्योंकि बकलिंग क्लास हर वक्त आपका सी ही रहेगा फॉर एनी एंगल सेक्शन। सो वी कैन ओनली चेंज द स्लेंडरनेस रेशियो। अब देखो और एक चीज आप कर सकते हो, जो एंगल सेक्शन आप लोग लिए हो तो उसको कंप्लीटली चेंज करके आप दूसरा एंगल सेक्शन ले सकते हो। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होगा, आपको क्वेश्चन को फिर से बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आप थोड़ा दिमाग लगाना कि अगर मेरा फेल हो जाता है एंड को तो मेरे को कैसे पास करना पड़ेगा। सी लैम्डा इक्वल टू KL/R। हमें पता है अगर लैम्डा हम लोग कम कर देते हैं, इफ लैम्डा डिक्रीजेस देन एफसीडी विल इंक्रीज। हम यहाँ से देखें लैम्डा जैसे जैसे बढ़ रहा है एफसीडी बढ़ रहा है। दैट मीन अगर लैम्डा मेरा घट जाएगा और लैम्डा मेरा कम हो जाएगा देन आई कैन सी दैट एफसीडी इंक्रीजेस। अब देखो हम लोग पहले एज्यूम क्या कहते हैं कि बोथ साइड इज सिंगल वोल्टेज। अब हम थोड़ा चेंज करेंगे। अब देखो आप एज्यूम करना, एज्यूम देयर आर 2 bolts on each gusset plate। अब हम एज्यूम किए कि जो मेरा डबल एंगल सेक्शन है उसके दोनों साइड में 2-2 बोल्ट है। मतलब यहां पे जो गसेट प्लेट है
कनेक्टेड है। अगर दोनों साइड में दो दो बोल्ट कनेक्टेड है, देन वी हैव सीन इफ वी आर हैविंग टू और मोर देन टू बोल्ट्स, देन माय KL विल बी इक्वल टू 0.85 into L। तो देखो अगर मेरा दो दो बोल्ट कनेक्ट हुआ, देन आई कैन टेक KL इक्वल टू 0.85 L। तो अगर मैं यहाँ पे 1 के बदले में 0.85 लगा रहा हूँ, देन my value of lambda will decrease and there is a possibility that my section passes। अब देखो, अब जो कॉपी में लिख रहे हो तो इसे काट के मत लिखना, शुरू से और एक बार लिखना। जैसे मैं यहाँ पे फॉर माई इज आई एम डिलीटिंग दिस और रबिंग दिस एंड राइटिंग अगेन, लेकिन आप और एक स्टेप में दूसरे स्टेप में ही लिखना, तो आपके लिए इजी होगा समझने के लिए। Here I can write 0.85 into 3000 mm for lambda for KL equal to 0.85 L। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी एज्यूम किए कि दोनों साइड में दो दो बोल्ट है। अब देखो ये आपका कितना निकला लैम्डा, देखो। सो माय लैम्डा इज नथिंग बट 109.91। अभी आपका लैम्डा निकल गया 109.91। कुछ हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा FCD। अब देखो एक बार लैम्डा निकल गया तो आपको फिर से टेबल 9 से रेफर करना पड़ेगा। रेफर टेबल 9C। अगर आप टेबल 9C पे देखो तो लैम्डा के डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको फॉर Fy इक्वल टू 300 यू कैन फाइंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ FCD। अब देखो आप अभी एक्सपर्ट हो गए होंगे ये सारा निकालने में, इसलिए मैं कुछ स्टेप ओमिट करके डायरेक्टली अपना FCD का वैल्यू लिख रहा हूं फॉर लैम्डा इक्वल टू 109.91 फॉर लैम्डा इक्वल टू, देखो आप 110 में निकालना और 109 पे निकालना, ये दोनों मिल जाएगा। तो FCD इंटरपोलेशन करके आप 109.91 पे निकाल सकते हो। सो यू कैन इंटरपोलेट द टू वैल्यूज, one for 110 and one for 109 slenderness ratio, and then you can find the FCD value for 109.91। देखो 109.91 पे आपका FCD निकलेगा 101 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन आई कैन राइट, अब देखो इंटरपोलेशन अपने आप करना, अगर समझ में ना आए देन यू कैन आस्क मी। अब देखो FCD कितना निकला अभी मेरा 101 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 101 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो PT इज नथिंग बट A into FCD। अब यहाँ पे FCD के बदले मैं लिख सकता हूँ 101 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा कितना निकलेगा, इट विल बी अराउंड 150.692 किलोमीटर, 150.692 किलोमीटर। अब देखना ये 150 किलोमीटर निकल गया, तो दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 150 किलोमीटर। मतलब आपका जो स्ट्रेंथ है, आपका स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर इज ग्रेटर देन द लोड। इफ स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन द लोड, हेंस माय मेंबर इज सेफ। सो यू कैन राइट हेंस सेफ। तो एक बार सेफ निकल गया, इसका मतलब क्या है, फॉर द गिवन लोड 150 किलोमीटर यू कैन यूज द डबल एंगल सेक्शन। माय डबल एंगल सेक्शन इज बैक टू बैक डबल एंगल इज 80 into 50 into ये थिकनेस जो है दिस वन इज 6 mm। सो मैं बैक टू बैक डबल एंगल 80 into 50 into 6। और एक चीज भी आपका निकल गया कि आपको इसके डिजाइन में दोनों बोल्ट यूज करने हैं, दो या दो से ज्यादा यूज करना है। एक बोल्ट अगर यूज करोगे देन माय सेक्शन विल बी फेल्ड। अब देखो अब फाइनल डायग्राम कैसे बना सकते हो।
में एंगल सेक्शन, डबल एंगल सेक्शन, connected with the 14 mm gusset plate here and 14 mm gusset plate here. So here there are two bolts, here there are two bolts. अगर आप इसका सेक्शन देखो, AA, then you can write this one is section AA. अगर आप इसका यहाँ से सेक्शन देखो BB, देन आपको बीच में गसेट प्लेट दिखेगा and there are two angles on both sides. तो ये आ गया आपका सेक्शन BB. तो सेक्शन A हो गया, सेक्शन BB हो गया, ये बीच में है 1.4 mm, सॉरी 14 mm गसेट प्लेट. अगर आप इसका प्लान देखो, देन आई कैन ड्रॉ द प्लान. ये आ गया आपका एक गसेट प्लेट, उसके दोनों तरफ दो एंगल, और यहाँ पे दूसरा गसेट प्लेट. गसेट प्लेट जो है मैं हैश कर रहा हूं, देखना. तो ये हो गया उसका प्लान. अगर आप प्लान में देखोगे, हाँ ये प्लान हो गया, दोनों तरफ दो पर गसेट प्लेट है, ये एक एंगल है और ये दूसरा एंगल है. तो देखो हमारा प्लान एलिवेशन सेक्शन सारा हो गया. यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो रहा है. देखो और ये आपका ये चैप्टर भी कंप्रेशन नंबर का. एक चीज ध्यान में रखना, जब कंप्रेशन नंबर पहले से लास्ट पढ़ रहे हो तो आपके पास दोनों चीजें रहना चाहिए. एक तो है IS 800-2007 और दूसरा है इंडियन स्टील टेबल. अगर ये दोनों चीज आपके हाथ में नहीं है तो आप कुछ भी समझ नहीं सकते. तो कोई सारा टेबल के ऊपर डिपेंडेंट है फ्रॉम IS कोड एंड योर स्टील टेबल. सो व्हाइल रीडिंग द होल चैप्टर, कि बोथ ऑफ देम असाइड, दोनों को पास करके रेफर कर करके एक एक क्वेश्चन करना. तो अगर कुछ डाउट हुआ देन यू कैन कॉल मी ओवर फोन एंड आस्क मी. So I hope there will not be any doubt. So from the next topic we'll go to design of beam. Thank you.